Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So friends, this video is very important for those candidates who are going to appear the mains examination of the regular high school teacher post. The RST रा syllabus रे electric current chapter अच्छी, so I will try to complete this chapter in 4 videos. So out of 4 videos, 2 videos will be dedicated to discussion of theories, concepts and formulas, and the next 2 videos will be dedicated for solving numericals and different MCQs. So this is the first lecture of this chapter, and आजिर lecture रे आमे किछि important formulas, theories और concept को discuss करिबा. And I hope that these videos will be very helpful for all of you in your preparation. So let's begin. So friends, आजिर वीडियो रे आमे फर्स्ट जो पार्ट डिस्कस करूचे, तो आमे फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करिबा ना अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो ऑल ऑफ यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ता माने गोटे कंडक्टर गोटे क्रॉस सेक्शन रे केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो होउची इन 1 सेकंड, ताको मैं कहिबा इलेक्ट्रिक करंट. सो फर्स्ट formula is about calculation of electric current. The first formula is about the calculation of electric current. Calculation of electric current. So from this topic you can get 2 types of question. कौन? The first one is how to calculate average current. The second question is how to calculate instantaneous current. तबे फर्स्ट देखिबा जे हाउ टू कैलकुलेट एवरेज करंट. एवरेज करंट रो फार्मूला कोन, तो मन रख आमे जेमती क्लास 10th रे पढिचे इलेक्ट्रिक करंट रो फर्स्ट फार्मूला कोन ना I इक्वल टू Q बाय T, चार्ज बाय टाइम. जदि क्वेश्चन रे कहिथिबो जे एतिकी सेकंड रे एतिकी कूलम रो चार्ज फ्लो होउची ताले केते हबो करंट. सपोज एग्जांपल माने क्वेश्चन कोन पढिची ना, सपोज 5 सेकंड रे 15 कूलम रो चार्ज फ्लो करूची. इन 5 सेकंड 15 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग. तो से केस रे आमे बाहर करिबा एवरेज करंट बाहर करिबा, तो I केता हबो I हे जिवो सिंपल 15 कूलम बाय 5 सेकंड. द आंसर विल बी 3 एम्पियर. ठीक अछि. So this is how you can calculate the average current. But if you want to calculate the instantaneous current, how to find it? तो मन रखो एडी instantaneous current ता माने कोन, current at a particular instant बा at a particular moment. तो instantaneous current रो फार्मूला कोन, तार फार्मूला होची I इक्वल टू dq by dt. ता माने the differentiation of charge with respect to time. तो जदि एमिते क्वेश्चन आसला तो से क्वेश्चन रे कोन मेंशन थिबो, how does charge depend on the time. Suppose for example the variation of charge with respect to time is given by the equation q equal to 3t square plus 2t minus 5. Suppose जो charge flow करूची, the flow of charge is not uniform, it is non-uniform flow of charge. तो से केस रे charge रो variation with respect to time केते कहिची q equal to 3t square plus 2t minus 5. and question को पचारची ना, find electric current by I at t equal to 3 second. आमे 3 सेकंड रे बाहर करियो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट. तो फार्मूला कोन, यू हैव टू डिफरेंशिएट चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो I केते हे जिवो, I हे जिवो dq by dt. ताको मिले कोन लिखिबा d by dt of 3t square plus 2t minus 5. and आमे समझते क्लास 11 12 रे पढिचे हाउ टू डिफरेंशिएट डिफरेंट क्वांटिटीज. तो d by dt of 3t square एटा केते हे जिवो, एटा हे जिवो 6t हे जिवो. देन प्लस d by dt of 2t एटा हे जिवो 2, and d by dt of minus 5 सेटा 0 हे जिवो. ता माने आमे कोन पाइले, the variation of current with respect to time केतेला I equal to 6t plus 2. ता माने again the current is also not constant, it will change with time. तो से कोन पचारची ना 3 सेकंड रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होची. तो आमे कोन करबा, करंट रो आमे जो पाइले एक्सप्रेशन पाइले सेथिरे आमे t जगह रे आमे 3 पुट कर देबा. सो एट t इक्वल टू 3 सेकंड, एट t इक्वल टू 3 सेकंड तो केते बा करंट I इक्वल टू 6 into 3 plus 2. तो एटा केते जो एटा हे जिवो 20 एम्पियर. सो रिमेंबर दैट एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. and there are also some smaller unit. Suppose मैं कहे भी 1 small ma माने मिली एम्पियर.
तो मिली एम्पियर माने कौन 10 टू दी पावर -3 एम्पियर सपोज मु कहबी 1 म्यू ए आपको हम पढ़िबा माइक्रो एम्पियर तो माइक्रो एम्पियर कौन हम एटा हे जिवो 10 टू दी पावर -6 एम्पियर ठीक अछि आ मन रख 1 एम्पियर करंट रो मीनिंग कौन 1 एम्पियर को आमे लिखि परिबा 1 कूलम बाय 1 सेकेंड 1 कूलम बाय 1 सेकेंड ता माने जदि गोटे कंडक्टर रो गोटे पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन दे कि ईच सेकेंड रे 1 कूलम चार्ज फ्लो करथबो देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर सो 1 कूलम हला कते सॉरी 1 एम्पियर कते हो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड बा मु एमती भी कहि परिबी जे 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड जदि 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो करिबो फॉर 1 सेकेंड then the amount of charge flowing through the cross section will be 1 coulomb ठीक अछि तो जदि I हैला q by t तो q केते हे जिवो q हे जिवो I into t हे जिवो ठीक अछि ता माने जदि कोटे कांस्टेंट अमाउंट रो करंट फ्लो करूची सपोज आई विल से दैट 3 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग फॉर 8 सेकेंड और 10 सेकेंड तो केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो हबो सपोज I कहि दै छी केते I कहि दै छी 3 एम्पियर आ केते टाइम पे फ्लो होची लेट अस से फॉर 2 मिनिट्स 2 मिनिट पर्यंत फ्लो होची तो पचार चार्ज केते हबो तो चार्ज रो फॉर्मूला कोन I into t देखो जदि कांस्टेंट करंट थिबो एठी कोन हमें लिखि छे 3 एम्पियर लिखि छे त माने द करंट इज कांस्टेंट तो जदि करंट कांस्टेंट थिबो आ टाइम भी गिवन थिबो त हमें चार्ज बाहर करबा हमें सिंपल कोन करबा I को t रे मल्टीप्लाई करबा बट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स all the quantities should be expressed in terms of SI unit ठीक अछि तो एठी करंट तो ऑलरेडी एम्पियर अछि त माने इट इज इन SI यूनिट बट देखो टाइम कोन अछि टाइम देछि मिनिट रे बट वी नो दैट मिनिट इज नॉट द SI यूनिट ऑफ टाइम द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड तो आमे तरे I रे t मल्टीप्लाई करबा दिस वी हैव टू कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड तो 2 मिनिट केते हबो एटा हे जिवो 120 सेकंड हे जिवो ठीक अछि तो वर्तमान केते हे जिवो चार्ज 3 एम्पियर I हला केते 3 एम्पियर into केतला टाइम 120 सेकेंड सो एम्पियर into सेकेंड एटा कूलम हे जिवो 3 into 120 will be 360 ता माने 360 कूलम अमाउंट रो चार्ज फ्लो करिवो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ठीक अछि सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट इफ चार्ज इज गिवन ठीक अछि एवरेज करंट केमते बाहर करिवो एंड हाउ टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट नेक्स्ट हमें कोन देखिबा current to charge conversion current to charge conversion तमने जदि इलेक्ट्रिक करंट कहिथिबो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन हाउ टू फाइंड चार्ज देखो आमे कोन पढिले I केते I होची dq by dt तमने जदि dt टाइम रे dq अमाउंट रो चार्ज फ्लो करथिबो तो सेही मोमेंट रे इंस्टेंटेनियस करंट केते आसीबो I आसीबो केते dq by dt तो मु लिखि परिबि जे dq इज इक्वल टू I into dt ठीक अछि dq केते हबो I dt हबो देखो जेमति मु कहली जदी करंट थिबो कांस्टेंट आ टाइम गिवन थिबो तो चार्ज हमें केमति बाहर करबा सिंपल I को t रे मल्टीप्लाई कर देबा किंतु जदी करंट कांस्टेंट नथिबो त माने करंट भी कोन डिपेंड करथबो टाइम ऊपर जेमति हमें ए जस्ट डिराइव कले इट देखो आमे I केते पहले I पहले 6t + 2 पहले त माने करंट डिपेंड करूछ का परे टाइम ऊपर डिपेंड करूछ तो ए केस रे जदि मैं टाइम को चेंज करबा हम दे टाइम को 0 पकेबा वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट इफ I पुट टाइम t = 1 सेकेंड और 2 सेकेंड और 5 सेकेंड और 10 सेकेंड तो जदि वो टाइम को चेंज करी जेबी देन डेफिनेटली करंट चेंज हेबो तो जदि ए भुरिया केस देथिबा क्वेश्चन दे माने करंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो सही केस रे हमें सिंपल I को t रे मल्टीप्लाई कर देले हमें चार्ज पाइबा नहीं वी हैव टू फॉलो सम अदर मेथड तो dq केते हबो I dt हे जिवो ता माने जदी गोटे पर्टिकुलर मोमेंट रे I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची फॉर ए स्मॉल टाइम dt तो सही स्मॉल टाइम dt रे केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो करिवो dq अमाउंट रो चार्ज फ्लो करिवो तो dq रो वैल्यू केते आसीबो I into dt आसीबो तो जदि मैं टोटल चार्ज बाहर करिबा क्वेश्चन में कहिथिबो जे 3 सेकेंड रु 5 सेकेंड भितरे केते चार्ज फ्लो होला किबा 2 सेकेंड रु 7 सेकेंड भितरे केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो होला तो सही केस में कोन करिबा वी हैव टू डू इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ dq केते हे जिवो इंटीग्रेशन ऑफ I dt एंड क्वेश्चन रे टाइम रो लिमिट कहिथिबो को टाइम भितरे 2 सेकेंड रु 5 सेकेंड
कि 3 सेकेंड रु 8 सेकेंड जहाँ भी कही आम ताकू लिमिट आकार पुट करवा। तो सपोज t1 हूँ कौन लोअर लिमिट, t2 है कौन t2 हूँ अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को आम कह क्यू कहवा। तो आम टोटल चार्ज रो वैल्यू केते पाइबा आई डी टी रो इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 ठीक अच्छे। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला जदि करेंट कही एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन हाउ टू कैलकुलेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल। आम गोटे एग्जांपल करवा। सपोज इमेजिन कर करेंट केते कही करेंट कहीला 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2 ठीक अच्छे। एंड कौन पचारा जे कैलकुलेट amount of charge flowing, calculate amount of charge flowing from t equal to 2 second to t equal to 4 second ठीक अच्छे। तो मैंने 2 सेकेंड रु 4 सेकेंड भितर केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो करुच्ची थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन। तो आम ए फॉर्मूला अप्लाई करवा। देख क्यू रो फॉर्मूला कौन ना आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 t2। तो ये t1 कौन हम 2 सेकेंड, t2 कौन हम 4 सेकेंड। तो आम लिमिट कौन पकेबा 2 to 4 एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो आई रो वैल्यू केते कहिछि 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2। तो दिस इज नॉट ए कांस्टेंट करेंट, इट इज ए वेरिएबल करेंट। तो इन प्लेस ऑफ आई कौन लिखी 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2 देन ये लिखा dt लिखा लिमिट केते 2 to 4 हम। देन इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt एटा केते हो 2 इंटू t स्क्वायर dt रो केते इंटीग्रेशन t टू द पावर 3 by 3 then what is the limit is 2 to 4 plus 5t dt अच्छी। तो केते इंटीग्रेशन 5 into t स्क्वायर by 2 लिमिट केते हम अगेन 2 to 4 then minus 2 dt इंटीग्रेशन एटा केते हो 2 into t हो and the limits are from 2 to 4 ठीक अच्छे। and then we have to put the limits। देखो ये जो 3 अच्छी आपको मु बाहर को नहीं जीवी तो 2 by 3 है गला ये t रा पावर 3 अच्छी एंड लिमिट केते 2 ru 4 अच्छी। तो यू नो हाउ टू पुट लिमिट्स। सो फर्स्ट यू हैव टू पुट अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ टाइम। तो ये 4 रा पावर 3 हो माइनस पुट द लोअर लिमिट 2 रा पावर 3 देन प्लस ये जो 2 अच्छी बाहर नहीं जीवी तो 5 by 2 है गला t रो स्क्वायर अच्छी तो 4 रो स्क्वायर हम माइनस 2 रो स्क्वायर माइनस 2 रहा ये इन प्लेस ऑफ t पुट 4 देन माइनस पुट 2। तो ये केते हो 2 by 3 इंटू 4 रो पावर 3 हो 64 माइनस 2 रो पावर 3 हो 8 प्लस 5 by 2 4 रो पावर 2 हो 16 माइनस 2 रो पावर 2 केते 4 हम माइनस 2 इंटू एटा 4 माइनस 2 अच्छी तब 2 हो गला। तो 2 by 3 इंटू 64 माइनस 8 एटा हम केते 56 ठीक अच्छे प्लस 5 by 2 इंटू 16 माइनस 4 विल बी 12 देन इट हैव माइनस 4 होगा ठीक है। एंड देन यू कैन सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर ठीक है। ता माने जदि इलेक्ट्रिक करेंट कही एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यू कैन फॉलो दिस मेथड ठीक है। ओके तो अल्जेब्रिकल मेथड रे आम केमिति चार्ज रु करेंट पाइबा और केमिति करेंट रु चार्ज पाइबा ताको हम डिस्कस कले। नेक्स्ट है कौन ग्राफिकल मेथड। देखो यदि ग्राफिकल मेथड रे क्वेश्चन पड़ला तो को ग्राफ देथिबो माने कर करेंट आउ टाइम रो ग्राफ देछि। सपोज गोटे ग्राफ अछि along x axis we have taken time and along y axis we have taken current ठीक अछि। एंड जेते तुम ग्राफ रो क्वेश्चन थिबो always focus on the coordinates or on the quantities given along axis। देखो जदि एपटे टाइम कहिथिबो सेकेंड रे बट एपटे कोन करंट कहिथिबो मिली एम्पियर रे सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पैरामीटर आल्सो ठीक अछि। काहे कि ना जदि करंट कहिथिबो मिली एम्पियर रे आउ टाइम कहिथिबो सेकेंड रे आमे यदि मिली एम्पियर को सेकेंड रे मल्टीप्लाई करबा आमे मिली कूलम पाइबा आमे कूलम पाइबानी माने 5 मिली कूलम
into 2 second, that will be 10 milliampere. ठीक अच्छे, sorry 10 millicoulomb माने 5 milliampere into 2 second, that will be 10 millicoulomb. तब यदि खाली 10 coulomb लिखे देबो, that is the wrong answer. So you have to always focus on the unit part, ठीक है, because unit part also is very important. Physics से unit ला बहुत important, because when we are measuring we have to sure about the unit. ठीक है, तो देखो जदि current आउ time रो ग्राफ कहिछि, से ग्राफ रो शेप जेमति भी हे पारे. सपोज हम गोटे सिंपल एग्जांपल कहूछि, सपोज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. एमति गोटे स्ट्रेट लाइन ग्राफ देछि, एटा होछि पॉइंट ए, एटा होछि पॉइंट बी. ओके, एंड डिफरेंट वैल्यूज गिवन अछि. एपटे सब टाइम देछि, सपोज एटा लिखला 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10 एम सब टाइम दे देछि. एंड एपटे लिखाइ छै कोन माने मिलियन पर लिखाइ छै 2 मिलियम्पियर, देन एटला कते 4 मिलियम्पियर, 6 मिलियम्पियर, 8 मिलियम्पियर एम सब देछि. तो आमे कौन करिबा, बाहर करिबा जे 10 सेकंड भितर केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो करिछ, बा 8 सेकंड भितर केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो करिछ. तो मन रखिता जदि करंट आउ टाइम रो ग्राफ देथिबो, तमे कौन करिवो, से ग्राफ रो अंडर रे जो एरिया अछि से एरिया बाहर कर देबो. दैट एरिया विल गिव यू द अमाउंट ऑफ चार्ज. तो आमे केमति एरिया बाहर करिबा, देखो ए जो डायग्राम रे ए भी कोन ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन अछि. तबे कौन करिया, पॉइंट बी रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दबा टू द एक्स एक्सिस बा टू द टाइम एक्सिस. तो आमे ए जो रीजन पाइले, ए रीजन रे आमे एरिया बाहर करिबा. ठीक अछि. तो देखो इन दिस एग्जांपल आमे जो गोटे ज्योमेट्रिकल फिगर पाउचे, एटा होचे ट्रापेजियम. ठीक अछि. तो ट्रापेजियम रे एरिया फॉर्मूला कोन, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ठीक अछि. तो देखो दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल and this is the height. Simple multiply कर दो, you can get the charge. But whenever you are multiplying, remember that the current is given in milliampere. ठीक अछि. तो आमे द आंसर पाइबा, the answer will be in terms of millicoulomb. ठीक अछि. तो जदि हमर बाहरला 30 millicoulomb बाहरला, तो आमे ऑप्शन देखिबा, ऑप्शन रे कोन देछि. यदि ऑप्शन सब जगह कूलम रे देथिबो, तो 30 millicoulomb केते हबो, 30 into 10 to the power -3 कूलम. बाटा कहते हो 3 into 10 to the power -2 कूलम हो. ठीक है. तो आमको यही टाइप रो कन्वर्सन भी देखा पड़ो. जदि आंसर 30 मिली, जो ऑप्शन रे 30 मिलीकूलम थी तो भल कथा. जदि से कूलम आकार लिखि माने 10 to the power समथिंग लिखाई तो ताको हमें कन्वर्ट करा पड़ो. ठीक अच्छे. तो मन रख, जदि करेंट आउ टाइम रो ग्राफ देछि, देन यू हैव टू सिंपली फाइंड द एरिया अंडर द करेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक अच्छे. एंड आमे जो टाइप रो ज्योमेट्रिकल फिगर पाइबा, इफ यू गेट ट्रायंगल वी हैव टू अप्लाई हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. इफ यू गेट ए रेक्टेंगल सिंपली अप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ. तो जो टाइप रो ग्राफ थिबो बा जो टाइप रो आमे ज्योमेट्रिकल फिगर पाइबा, आमे सेही ज्योमेट्रिकल फिगर रो एरिया रो फॉर्मूला यूज करबा. ठीक अच्छे. एंड देन यू कैन इजीली गेट द अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक अच्छे. So this is all about calculation of electric current and calculation of charge. Okay. तो next topic को move करवा. Next topic है कौन, about drift velocity. तो देखो हमें already class 12 रे पढ़ी चे about drift velocity. तो drift velocity रा meaning कौन? What is the meaning of drift velocity? देखो जदि हमें गोटे simple गोटे metallic conductor नबा, suppose we will take a copper wire. So inside the copper wire we have many free electrons. The free electron are meaning कौन? देखो free माने कौन? We know that every atom consists of nucleus, and around the nucleus the electrons are revolving in different orbits, and the nucleus is positive charge, electron is negative charge. So there is electrostatic attractive force between the electron and the nucleus. तामने जो पर्यंत इलेक्ट्रॉन टा से एटम रो ऑर्बिट रे घुरुची ताको में कहबा बाउंड इलेक्ट्रॉन. ता माने द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इट इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. बट जो इलेक्ट्रॉन माने आउटर ऑर्बिट रे थांती, दे आर लूजली बाउंड, बा ताको ऊपरे न्यूक्लियस जो फोर्स थाए बहुत कम फोर्स थाए. सो बाय रिसीविंग सम एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, they can be escaped, but they can leave their atom. And when they leave their atom, they become free. They are no more in the bound state. Once an electron leaves its atom, it becomes free, and it is free to move inside the conductor.
तो आम जब गोटे मेटालिक वायर नवा it may be iron, it may be aluminum, it may be copper, maybe silver, you can take any metallic wire. It contains a large number of free electrons, and those free electrons, they are not static but they are not at rest, they move randomly because of thermal energy. Due to their thermal energy they move randomly. तो जिते बड़े माने आमे गोटे सिंपल गोटे वायर नौचे मेटालिक वायर नौचे ता भितरे वी हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग रैंडमली आ जेहेतु से माने रैंडमली मूव करूछंती आमे किछि करंट पाउने बट व्हेन वी कनेक्ट ए बैटरी अक्रॉस इट तेमे गोटे बैटरी लगा देबा तबे कोन हबो सपोज देखो एटा बैटरी अछि लाइक दिस इफ वी कनेक्ट ए बैटरी एंड इफ वी क्लोज द की तबे कौन हम ए कंडक्टर रो बोथ एंड रे बा दुईटा एंड भितर गोटे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हम सपोज देखो एबे जो हमें एंड ए नहीं चे एटा होची एंड ए एटा होची एंड बी तो ए देखो एंड ए लागि जे कहा को टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड एंड बी का लागि द नेगेटिव द बैटरी माने कर एंड ए रो पोटेंशियल केते v1 अछि आ एंड बी रो केतला पोटेंशियल v2 अछि तब ए अच्छी एट हाई पोटेंशियल बी अच्छी एट लो पोटेंशियल सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स केते हबो v इक्वल टू v1 माइनस v2 ठीक अछि एंड ए जो पोटेंशियल डिफरेंस आसिला ता पई कोन हबो कंडक्टर भितरे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड केंदे आसीबो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट माने फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो जत्ते बेले गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हला इनसाइड द कंडक्टर एबे कोन हबो दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल एक्सपीरियंस फोर्स आमे जानि छे इलेक्ट्रॉन माने फोर्स एक्सपीरियंस करते को बाटे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जदी हाई पोटेंशियल रु लो पोटेंशियल को अछि तो इलेक्ट्रॉन केमिति मूव करिवे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ता माने फ्रॉम एंड बी टू एंड ए ठीक अछि अच्छा देखो जदी इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तबे कोन हबो all the electrons will experience force and if all the electrons will experience force definitely they will be accelerated because Newton's second law कोन कहूची force equal to mass into acceleration तो जेते बळे सबु इलेक्ट्रॉन ऊपर फोर्स पडुची को फोर्स पडुची इलेक्ट्रिक फोर्स पडुची ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सो ऑल दोस इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सम फोर्स एंड दे विल बी एक्सेलरेटेड तो सेमानकर स्पीड कमबा कथा धीरे धीरे बढ़ी 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 बहुत लार्ज होबा कथा बट एक्चुअली दिस डजंट हैपन एम्ति हुएनी काहे हुएनी देखो जेते इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करूची इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन सफर्स लॉट्स ऑफ कोलिजन among other electrons or with the metal ions ठीक अछि सो सपोज इलेक्ट्रॉन ऊपर फोर्स पडुची इट इज एक्सेलरेटेड तार स्पीड के बढ़ी गला एंड देन इट सफर्स ए कोलिजन सो आफ्टर ईच कोलिजन कोन हबो द इलेक्ट्रॉन विल लूज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बा तार कोन स्पीड कमी जिवो बट कंटीन्यूअसली आमे बैटरी लगे जे एंड द बैटरी इज कंटीन्यूअसली पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स तो एठी कोन होची इलेक्ट्रॉन स्पीड बढ़ुची एंड आफ्टर वन कोलिजन पुणी कमी जाउची पुणी बढ़ुची स्पीड एंड अगेन इट कोलाइड्स पुणी कमी जाउची तो कंटीन्यूअसली कोन होची ना इलेक्ट्रॉन स्पीड बढ़ुची कमुची एंड इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन मेंटेन्स एन एवरेज वेलोसिटी बा ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बा तक हम कहबा ड्रिफ्ट स्पीड कहबा सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो सिंबल कोन तक हम लिखिबा vd ठीक अछि तो मन रखता ड्रिफ्ट स्पीड मीनिंग कौन द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी ठीक अछि एंड ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी गेट इलेक्ट्रिक करंट आमे विदाउट एनी वोल्टेज सोर्स बा विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस आमे केबे भी करंट पाई परिबा नाही सो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट ठीक अछि एंड ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी गोटे फॉर्मूला अच्छे मन रखता vd केता हबो e into v by m l into tau so there is no need to derive the formula only remember the formula तो vd माने कौन ड्रिफ्ट स्पीड तार वैल्यू केता हबो ev by ml tau e कौन e होची चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा मालूम अछि
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तार वैल्यू केते 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम -19 कूलम। V माने कौन V होची पोटेंशियल डिफरेंस आमे जो वायर नेचे से वायर दुईटा एंड रे केते वोल्टेज अछि बा केते अछि पोटेंशियल डिफरेंस ठीक अछि। देखो कैपिटल V होची कोन वोल्टेज स्मॉल vd माने कोन होची ड्रिफ्ट स्पीड m कोन m होची मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू नो द वैल्यू केतेटा 9.1 into 10 to the power -31 kg एंड l कोन l होची लेंथ ऑफ द कंडक्टर आमे जो वायर नेचे आमे जो वायर रे करंट पास करूचे से वायर रो लेंथ केते l एंड व्हाट इज टाउ टाउ होची एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम तो मन रख जेमती मु कहली व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट सफर्स लॉट्स ऑफ कोलिजन ठीक अछि। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम तार मीनिंग कोड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बा टू कंजिक्यूटिव कोलिजन तार इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन टा पॉइंट ए रे फास्ट कोलाइड कला द फर्स्ट कोलिजन टेक्स प्लेस एट पॉइंट ए and then the second collision takes place at the point B the second collision takes place तो दुईटा कंजिक्यूटिव कोलिजन भितरे सो जो जति से टाइम गैप पाउची ताको हमें कहिबा रिलैक्सेशन टाइम ता माने फॉर दैट टाइम इंटरवल द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम एनी अदर कोलिजन बा इट इज रिलैक्स्ड सो द मीनिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम मीन्स द टाइम between two successive by between two consecutive collisions ठीक अछि। so you have to remember this formula vd केते हबो vd हे जिवो ev by ml into tau so from this formula it is clear that जदि आमे गोटे वायर नेचे having a certain length and आमे गोटे बैटरी लगेचे सपोज आमे 1.5 वोल्ट रे बैटरी लगेचे तो 1.5 वोल्ट रे बैटरी लगेले आमे जेति की पाइबा vd जदि मुझे कौन करी वोल्टेज को बढ़े देवी 2 वोल्ट कर देवी 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट एमती बढ़े बढ़ी जी देन कौन हम करेस्पॉन्डिंगली vd बढ़ी बढ़ी जीव ताने फॉर ए गिवन कंडक्टर vd बा फॉर ए गिवन वायर vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बा द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर ठीक अछि। अच्छा तो एबे देखिबा जे whether there is any relation between electric current and drift speed or not yes there is a relation तो मन रखता है एठी relation between drift speed and electric current and this equation is very important equation मन रखो फॉर्मूला कौन आसीबो I माने कौन I होची करंट I केते हे जो I हे जो n a e v d I केते हो I हेबो n a e v d तो I कौन इलेक्ट्रिक करंट n कौन n होची नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखो नंबर डेंसिटी माने कौन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर देखो सपोज आम जमी कहूचे जे एमंग ऑल द कंडक्टर्स सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर कहीं तार देख जो कंडक्टर कंडक्टिविटी अधिक थी इट इज कंसीडर टू बी द बेस्ट कंडक्टर तो सबू कंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम न थाए तो आम जो लिखे एन माने कौन एन माने होची नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तार माने यूनिट वॉल्यूम रे माने 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम रे हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर तो जो कंडक्टर रे एन वैल्यू अधिक थिबो इट इज कंसीडर टू बी द बेस्ट कंडक्टर ठीक अछि एंड इट ए कौन ए होची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ठीक अछि। आम जो वायर नेचे से वायर एरिया क्रॉस सेक्शन मन कर आम जो वायर नौचे द वायर इज जनरली ऑफ सिलिंड्रिकल शेप तो जदि एमती गोटे वायर थिबो एंड द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर तो जदि रेडियस आर थी से सर्कल रो तो एरिया केते जो एरिया हे जो पाई आर स्क्वायर हे जो एंड व्हाट इज ई होची द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज vd होची कोन द ड्रिफ्ट स्पीड
So this equation is very important equation, the relation between electric current and drift speed. Okay, next कौन आसीबो ना ओम्स लॉ. देखो ओम्स लॉ होचे गोटे बहुत इंपोर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ओम्स लॉ इज ए वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक. तो ओम्स लॉ कौन कहूची, ओम्स लॉ गिव्स अस ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. देखो आमे कौन कहले, आमे कहले जे इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करूची कहा पर ऑन ड्रिफ्ट स्पीड. आई केते, आई होची एन ए ई वी डी. ठीक अछि. एंड आमे वी डी केते पाइजे, वी डी केते पाइजे ना ई वी बाय एम एल इंटू टाउ, एम एल इंटू टाउ. तो देखो एठी जो आमे वी लिखिचे, दिस वी मीन्स वोल्टेज बा पोटेंशियल डिफरेंस. तो आई डिपेंड करूची वी डी उपरे, वी डी डिपेंड करूची वोल्टेज उपरे. त माने डेफिनेटली करंट डिपेंड करे वोल्टेज उपरे. So what is the relation between current and voltage? That is given by Ohm's law. तो एबे में कौन करिबा, देखो सिंपल जिनस आमे जो लिखिचे I इक्वल टू एन ए ई वी डी लिखुचे, वी डी जगह रे आमे पुट करिबा दिस एक्सप्रेशन ई वी बाय एम एल इंटू टाउ. तो आमे कौन पाइबा, आमे पाइबा एन ए ई इन प्लेस ऑफ वी डी आई विल राइट ई वी बाय एम एल, ई वी बाय एम एल इंटू टाउ. तो एटा केते हिजबो, एटा हिजबो एन ए ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल होल इंटू वी हे गेला. ठीक अछि. तो आई केतेला, आई होची एन ए ई स्क्वायर टाउ बाय एम एल इंटू वी. तो देखो जदि आमे इमेजिन करिबा, आमे जो वायर नेचे ओम्स लो एक्सपेरिमेंट करिया पई आमे गोटे वायर नेथिबा, से वायर रो लेंथ तो फिक्स थिबो, ताको में चेंज करूने. से वायर एरिया क्रॉस सेक्शन भी कौन फिक्स थी, ताको में चेंज करूने. एंड दैट वायर इज मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेटल. तो तापे कौन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कौन कांस्टेंट थिबो. व्हाट इज ई, ई होची द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कांस्टेंट. एंड टाउ, द रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. जदि हमें कौन टेम्परेचर को चेंज करबा तो टाउ चेंज हो. बट इफ यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, टाउ कौन हो, टाउ रहइबो कांस्टेंट. सो imagine करो, we have taken a given conductor for which length is fixed, area is fixed, number density of electrons is fixed, mass of electron is always constant, the charge of electron is also always constant. And if we keep the temperature fixed by any arrangement, जब हम कौन करिबा टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देबा, then tau will also be fixed. ता माने all the terms inside the bracket they will be constant. ठीक अछि. तो ए जो कांस्टेंट अछि ताकु हम कॉल, ताकु लिखिबी 1 by r. तो आई केते हिजबो, आई हिजबो 1 by r into v हे गेला. तो 1 by r हमें कहा को लिखिचे, एटा होची n a e स्क्वायर टाउ बाय m l को हम लिखिचे 1 by r लिखिचे. तो मते बे को r केते हिजबो, r हिजबो m l डिवाइडेड बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ. आर केते हो, आर हिजबो एम एल बाय एन ए ई स्क्वायर टाउ. तो ये जो मैं आर लिखिले, व्हाट इज आर, आर होची रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक अछि. तो आमे एठी जो 1 बाय r को कहले दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. रे केते बड हबो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक अछि. एंड यू हैव टू टेक ए गिवन कंडक्टर ऑफ सर्टेन फिक्स्ड लेंथ एंड फिक्स्ड एरिया क्रॉस सेक्शन. तो आम ओम्स एक्सपेरिमेंट करती, all the physical conditions are kept constant. that means length of the conductor, its area cross section and temperature. If you keep all these quantities constant, then current will be directly proportional to voltage. ठीक अछि. तो आप कॉल लिखिबे एठी physical conditions remaining constant, physical conditions, okay, physical conditions remaining constant, current through a conductor, current through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. Potential difference across its
टू एंड्स ठीक अच्छे तमें कौन हम आई हम कौन प्रोपोर्शनल टू v हम एंड जब मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा तो आई के आई हम v बाय r बा r के r हो v बाय i ठीक अच्छे एंड दिस r इज नोन एज रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रो मीनिंग कौन तमें इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट ओके तो आम जो r पाइले के v बाय i पाइले ताने जदि गोटे कंडक्टर अक्रॉस रे वोल्टेज देइची एंड यू नो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट यू कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड द व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो मन रखा द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is ohm ठीक अच्छे and what is the symbol for ohm you can use this symbol okay तो ये कह 1 ohm 1 ohm माने कौन हो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर देखो r केते r हो v बाय i यदि मु v को लिखी 1 वोल्ट i को लिखी 1 एम्पियर तो r केते हो r हो 1 ohm तो आम लिखि पारे ये 1 ohm इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर तो मैंने इमेजिन करो वी हैव ए कंडक्टर एंड से कंडक्टर दुईटा एंड रे आम 1 वोल्ट वोल्टेज देचे ठीक अच्छे द वोल्टेज इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम तमने इफ वी अप्लाई 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस a conductor and if we get 1 ampere of current then the resistance is said to be 1 ohm ठीक अच्छे so remember this unit ला 1 ohm के 1 ohm हम 1 volt by 1 ampere ठीक अच्छे तो देखो अगेन आम r के पाइले r हूँ एम एल बाय एन ए स्क्वायर टा होला तो एबे देखो गोटे सिंपल जिनस r इक्वल टू एम एल बाय एन ए स्क्वायर टाउ पाइले ओके नाउ टेल मी वन थिंग आमे कौन कहले आमे तेरे ओम्स ला एक्सपेरिमेंट करूचे वी आर टेकिंग ए गिवन वायर से वायर लेंथ फिक्स अच्छी एरिया फिक्स अच्छी ठीक अच्छे तो जदि आमे एबे कौन करिबा आमे आउ गोटे वायर नबा सेम मटेरियल रो बट अलगा लेंथ और अलगा एरिया तब आमे लेंथ को चेंज कर देबा एरिया को चेंज कर देबा देखो वी कैन इजिली चेंज लेंथ एंड एरिया ठीक अच्छे से आम हाथ में अच्छे किंतु ये जो लिखाई है फॉर्मूला ये फॉर्मूला रे को क्वांटिटी अच्छी जहाँ को आम केबे चेंज करि परिबानी गोटे कौन गोटे हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ताको आम केबे चेंज करि परिबानी आ गोटे कौन आ गोटे हूँ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आम जो मेटाल नौचे सपोज एटा कपर कपर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आम चेंज करि परिबा नाही we cannot change E square by E we cannot change the charge of electron that is fixed and देखो जदि आम गोटे constant temperature रे experiment करूचे तो टाउ भी चेंज हेनी बट आम वायर लेंथ को चेंज कर परिबा एरिया को चेंज कर परिबा ठीक अच्छे तार माने जदि आम केवल टेम्परेचर को फिक्स कर दबा बट इफ वी कीप ऑन चेंजिंग द लेंथ एंड एरिया तो से कैसे कौन हम आर टा चेंज हम ठीक अच्छे देखो आम एम एन ई आउ टाउ आपको चेंज करूने आम केवल लेंथ आउ एरिया को चेंज करवा देन कौन हम रेजिस्टेंस भी चेंज हम तो आम देखा ये रेजिस्टेंस केमिति डिपेंड करुच्ची ऑन द ज्योमेट्री बा ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर तो देखो ये आम लिखले जे आर इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ आपको आम ब्रैकेट करदे इंटू एल बाय ए करदे ठीक अच्छे आर के एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाय ए तो जमती मुझे कहली जदि आम गोटे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट करूचे एंड वी आर टेकिंग और वी आर कंसीडरिंग ए गिवन मेटल तो मास नंबर डेंसिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट टाउ चेंज हेनी सो दिस ब्रैकेटेड टर्म इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल बट वी कैन चेंज द लेंथ एंड एरिया इमेजिन कर आम कौन कपर नबा कपर रु आम डिफरेंट लेंथ आउ डिफरेंट एरिया रो वायर्स बनैबा 5 सेम लेंथ 7 सेम लेंथ 10 सेम लेंथ रो में वायर्स बनैबा तो सब वायर दे आर मेड फ्रॉम कपर सेम मटेरियल बट लेंथ अलग अलग अच्छे और कौन एरिया भी अलग अलग नबा
थिन वायर थिक वायर सब दबा तो आम जब लेंथ आउ एरिया को चेंज करवा तो कौन हम आर चेंज हो तो ये जो आम कांस्टेंट पाउचे दिस कांस्टेंट दिस इज द कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल तो आपको कौन लिखा आर इक्वल टू रो एल बाई ए कौन लिखा आर इक्वल टू रो एल बाई ए एटी रो कौन रो हूँ आपको ना दबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा आपको आउ कौन कहती आपको कहती रेजिस्टिविटी यू कैन कॉल इट रेजिस्टिविटी ऑल्सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा आम कौन कहीपर रेजिस्टिविटी कहीपर ठीक अच्छे ओके देख आम कौन पाइले ये आर के पाइले आर हूँ रो एल बाई ए ठीक अच्छे तो आम रेजिस्टिविटी विषय पर पढ़ा आग देख जे रेजिस्टेंस केमिति डिपेंड करुच्ची ऑन लेंथ एंड केमिति डिपेंड करुच्ची ऑन एरिया सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तार मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन देख यही कॉन्सेप्ट उपरू भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम आसे आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया ता माने कौन इमेजिन कर जदि आम पाखे दुईटा वायर अच्छे इफ वी हैव 2 वायर्स ठीक अच्छे बोथ आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल सपोज कपर तैयारी एंड द 2 वायर्स हैव द सेम एरिया क्रॉस सेक्शन बा सेम थिकनेस बट डिफरेंट लेंथ सपोज एटा हूँ के लेंथ एल एंड दिस लेंथ इज 2L ठीक अच्छे बाकी एरिया सेम अच्छे एरिया ए आर भी कहते एरिया ए अच्छे एंड बोथ आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल कपर ओके तो जदि फर्स्ट कंडक्टर रेजिस्टेंस 10 ओम हुए सेकेंड कंडक्टर केते हबो एटा हेजिबो 20 ओम केते हबो 20 ओम हबो कहीं जेहेतु लेंथ डबल हो जाइए तो कौन हम रेजिस्टेंस में लिखा 2L तो यहाँ 2L तो जदि लेंथ डबल हो गला तो अब कौन हम रेजिस्टेंस कौन डबल हो ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट कौन जदि एरिया बढ़ीगला जदि एरिया बढ़ीगला तो कौन हम आर कमिज इमेजिन कर वी हैव 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ देयर लेंथ्स आर सेम बट वन इज थिक द अदर इज थिन तले कौन हम द थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस बिकॉज मोर द एरिया लेस द रेजिस्टेंस मोर द एरिया लेस द रेजिस्टेंस तो जो वायरटा मोटा थी इट हैज लेस रेजिस्टेंस आ जदि गोटे वायर कौन थिन थी इट हैज मोर रेजिस्टेंस ठीक अच्छे तार थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस than a thin wire less resistance than a thin wire provided they have same length है तो से मानकर लेंथ कौन सेम थी देन जो वायरटा टिके थिक थी तार रेजिस्टेंस कम आसो ठीक अच्छे ओके तो देखा आम कौन कौन सब क्वेश्चन पाई देख बेले क्वेश्चन को पचारे स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर stretching of a wire this is a very important topic बा question stretching of a wire माने कौन इमेजिन कर आम पाखे गोटे वायर अच्छी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर आम कौन कर स्ट्रेच करदे बी अप्लाइंग फोर्स वी विल स्ट्रेच द वायर एंड आम स्ट्रेच करवा कौन हम तार लेंथ बढ़ सपोज कह कौन ना ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ but to triple the length then what happens to the resistance तो usually आमे कौन भूल करती सपोज गोटे क्वेश्चन देछि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched to double its length stretched to double its length calculate its new resistance सपोज एमती गोटे क्वेश्चन देला
तो यूजुअली आमे गोटे भूल कौन करती आम देखीदेवा जे ताको स्ट्रेच करुचे टू डबल द लेंथ तो जब लेंथ डबल होची तो कौन हम आर डबल हो तो आम लिखिदेवा के 20 ओम लिखिदेवा 10 थिला तो जब लेंथ डबल हो देन द आंसर भी 20 ओम बट दैट इज द रॉन्ग आंसर कहीं देख लेंथ डबल हेले डेफिनेटली आर डबल हम ठीक अच्छे किंतु एठी आम गोटे जिन मिस करुचे ये कौन लिखाई स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर आम स्ट्रेच करुचे इमेजिन कर तुम पाखे गोटे वायर अच्छी एमतिया ठीक अच्छे जदि आम ए वायर को स्ट्रेच करवा वायर वॉल्यूम तो कांस्टेंट थी जो अमाउंट ऑफ मैटर अच्छे दैट इज कांस्टेंट तो जदि मैं ए वायर को स्ट्रेच करी तो कौन हम देयर विल बी टू चेंजेस कौन हम तार लेंथ बढ़ बट एट द सेम टाइम द वायर विल बिकम थिन पतला हो ताने लेंथ बढ़िया सहित सहित कौन हम एरिया कमिज ताने यू गेट ए थिन वायर लेंथ बढ़ीगला बट एट द सेम टाइम कौन हम एरिया कमिज एंड वी डोंट कंसीडर द चेंज इन एरिया जदि कौन करें देखा लेंथ बढ़ी डबल हो तो आर कौन डबल हो दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट जदि लेंथ बढ़ुची एरिया भी कमिबो तो ये केमती कमिबो मन रखिथा लेंथ जेतिकी टाइम्स बढ़िबो एरिया सेतिकी टाइम्स कमिबो ता माने मन कर इमेजिन कर इनिशियली द रॉड हैज एरिया ए लेंथ एल जदि एबे न्यू लेंथ केते हो एन टाइम्स हो गला सेटा 2 टाइम्स हो पारे 3 टाइम्स हो पारे 5 टाइम्स हो पारे द लेंथ हो एन टाइम्स तो न्यू एरिया केते हो न्यू एरिया हो 1/n टाइम्स माने a by n होगा ता माने जदि लेंथ हम डबल एरिया हम हाफ द लेंथ हो 3 टाइम्स एरिया केते एरिया हम 1/3 टाइम्स सो रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट पॉइंट किंतु स्ट्रेचिंग कले किंबा गोटे कट कले देयर विल बी नो चेंज इन रेजिस्टिविटी केबे चेंज होनी रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मटेरियल तो जदि मैं कॉपर वायर को स्ट्रेच करुचे द वायर विल रिमेन एज कॉपर ए कॉपर वायर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू आयरन वायर और एल्यूमिनियम वायर इल रिमेन कॉपर ता माने स्ट्रेचिंग कले किंबा कट कले देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी फिक्स रहिबो ठीक अछि तो देखो आमे जानिचे रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला कौन रो इंटू एल बाई ए तो जिते बड़े वायर लेंथ एल थिला एरिया ए थिला तो आर के आर हम रो एल बाई ए हम बट आफ्टर स्ट्रेचिंग सपोज द न्यू रेजिस्टेंस के आर डैश ठीक अच्छे तो आर डैश को कौन लिखी रो इंटू न्यू लेंथ बाय न्यू एरिया रेजिस्टिविटी सेम रेजिस्टेंस चेंज हम तो आपको कौन लिखी रो इंटू एल डैश आम के पाइचे एन इंटू एल पाइचे आउ ए डैश के पाइले ए बाय एन पाइले तो ये कौन हम ये एड उपरक पड़े तब कौन पाइबा ये एन स्क्वायर इंटू रो एल बाय ए के पाइबा एन स्क्वायर इंटू रो एल बाय ए तो रो एल बाय ए हूँ कौन द इनिशियल रेजिस्टेंस तो आपको लिखी पारि एन स्क्वायर टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस तो मन रखी था जदि आम एन टाइम्स स्ट्रेच करुचे तो न्यू रेजिस्टेंस केते हबो एन स्क्वायर टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस ठीक अच्छे तो यही फॉर्मूला आम यदि मन रखा आम एक क्वेश्चन आराम से करिपरिबा ठीक अच्छे तो देखो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो देखो ओल्ड रेजिस्टेंस केते कहछि 10 ओम कहि देछि आर केते कहला 10 ओम कहला 10 ओम एंड आम जो स्ट्रेच कले टू डबल द लेंथ ता माने एन केते कहला 2 कहला आम 2 टाइम स्ट्रेच करुचे ठीक अच्छे तो ये कहला डबल लेंथ हो एन को 2 पकेबा तो न्यू रेजिस्टेंस केते हबो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस तमने 2 स्क्वायर इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 40 ओम ठीक अच्छे तो जदि आम एग्जाम रे 20 लिखिक आसथिबा दैट इज रॉन्ग आंसर द राइट आंसर केते हबो एटा हबो 40 ओम हबो ठीक अच्छे सो रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट पॉइंट जदि आम स्ट्रेच करुचे देन केते हबो एन स्क्वायर टाइम्स हो जिवो ठीक अच्छे तो आउ केमते क्वेश्चन आसपरे फ्रॉम दिस टॉपिक देखो आउ गोटे वर्ड यूज करथिबो कट कटिंग ए वायर देखो सपोज इमेजिन कर आम पाखे गोटे वायर अच्छी लाइक दिस एंड दिस वायर हैज रेजिस्टेंस लेट अस से आर इज द रेजिस्टेंस
तो जदि आम गोटे वायर को कट करवा तो कट कले कौन हम तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हेनी माने जदि इमेजिन कर इफ यू कट ए वायर देन इट्स थिकनेस विल नॉट चेंज द लेंथ विल चेंज बट व्हेन यू स्ट्रेच ए वायर द लेंथ विल चेंज द एरिया विल चेंज बट इन केस ऑफ कटिंग ओनली द लेंथ चेंजेस द एरिया रिमेन सेम तो देख जदि मैं कौन करी एठी ए वायर को मु एनटा पार्ट करदेवी एनटा पार्ट कली 5टा पार्ट 10टा पार्ट 6टा पार्ट तो से केस रे ईच पार्ट रो रेजिस्टेंस केते हबो r बाय n हे जिवो सपोज इमेजिन करो एटा कते 1 2 3 4 5 5टा पार्ट करूची जदि r थिबो 10 ओम माने पूरा होल रॉड रो रेजिस्टेंस जदि 10 ओम थिबो तो ये जो 5टा पार्ट कले तो ईच पार्ट रो रेजिस्टेंस केते जिवो एटा हे जिवो 10 बाय 5 बा 2 ओम हे जिवो ठीक अछि तो आम कटिंग करुचे कौन होची देयर इज नो चेंज इन एरिया ओनली लेंथ चेंज होची तबे तो जेतेटा इक्वल पार्ट करथिबा जेतेटा इक्वल पार्ट करथिबा कौन हबो आमे ईच पार्ट रो रेजिस्टेंस केते पाइबा ओल्ड रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ठीक अछि तो दिस इज ऑल अबाउट कटिंग ए वायर तापर आउ कौन देथिबा क्वेश्चन ना मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग तो तारा मीनिंग कौन देख मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग मीनिंग कर सपोज आम पाखे गोटे वायर अच्छी आम कौन करवा देख सपोज एमती गोटे वायर अच्छी ए वायर लेंथ सपोज एल अच्छी एंड आम जो पाइचे क्रॉस सेक्शन जो सर्कुलर पाइचे क्रॉस सेक्शन पाइचे द रेडियस केते आर अच्छी सपोज आर अच्छी ओके तो आम कौन करवा ताको देखि मेल्ट करदेबा ठीक अच्छे मेल्ट करके आम आउ गोटे छांचरे पकेबा एंड आम गोटे अलगा माने साइज रो गोटे वायर बनेबा मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग ए केस कौन हम देख सी कौन क्वेश्चन कही जे ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर is melted and recasted into a new wire of radius half the initial value बा double the initial value तो मन रख ये जदि कौन initially the radius was r initial radius केते थिला r थिला melting परे after melting बा after recasting आमे कौन कले ताकू सपोज थिन करदे बा ठीक करदे जहाँ भी क्वेश्चन दे सपोज आम थिन करदे द न्यू रेडियस केते कहला आर डैश इक्वल टू हाफ ऑफ द ओल्ड रेडियस किंबा कौन कह ट्वाइस ऑफ ओल्ड रेडियस तो सही केस रे व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस देख आम मेल्ट कले ताको रिकास्ट कले तो आम रिकास्ट कर कौन करुचे आम तार रेडियस कमी दौचे सो इफ यू आर रिड्यूसिंग द रेडियस तार आम कौन थिन कर दौचे द एरिया इज डिक्रीजिंग तो एरिया फॉर्मूला कौन पाई इंटू रेडियस स्क्वायर तो ओल्ड बा इनिशियल एरिया केते आसीबो इनिशियल एरिया केते थिबो ए केते ए होची पाई आर स्क्वायर तो फाइनल एरिया केते आसीबो फाइनल एरिया हे जिवो केते ए डैश केते हे जिवो पाई इंटू देखो व्हाट इज द न्यू रेडियस r by 2 तो लिखिबा r by 2 रो स्क्वायर तोरा केते हे जिवो पाई r स्क्वायर by 4 हे गेला ता माने व्हाट इज पाई r स्क्वायर होची ओल्ड एरिया तो आकु मैं लिखि परिबी जे a डैश केते हे जिवो a by 4 हे जिवो ठीक अछि ता माने एरिया 1/4 हे गेला ठीक अछि जदि एरिया कमी गेला लेंथ बढ़ी जिवो बिकॉज से वायर वॉल्यूम तो कांस्टेंट ना ठीक अच्छे तो आम सपोज जी ग्राम वायर नहीं जी माने वॉल्यूम वायर नहीं मेल्ट कलापर भी वॉल्यूम सेम रही आम थिन कर दौचे तो कौन लेंथ बढ़ी इफ यू मेक इट थिक लेंथ कमीज तो जदि एरिया 1/4 हो गला तो लेंथ केते हो लेंथ हो 4 टाइम्स हो 4L हो स्ट्रेचिंग आउ मेल्टिंग रिकास्टिंग सेम जिनस जदि आम कौन करुचे तार माने ज्योमेट्री को चेंज कर दौचे तार लेंथ को चेंज करुचे कि एरिया को चेंज करुचे
तेल कौन हम आइदर से थिन कि थिक हम ठीक अच्छे। तो एल डैश के 4L होगा तो बर्तमान न्यू रेजिस्टेंस के रो देखो एगेन रेजिस्टिविटी सेम रो इंटू एल डैश में न्यू लेंथ के 4L डिवाइडेड बाय न्यू एरिया के A/4 तो 4 ऊपर पड़ो के 16 टाइम्स रो L बाय A ताको लिखिपारि 16 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ये मन रख जदि रेडियस n टाइम्स हो जाउची मन रख जदि कौन हो रेडियसटा n टाइम्स हो गला ठीक अच्छे तो एरिया के एरिया हो n स्क्वायर टाइम्स हो ठीक अच्छे। तो देखो रेडियस हाफ हो यदि रेडियस हाफ हो तो n के हाफ हो इफ वी मेक रेडियस डबल तो कौन n के 2 हो इफ मेक रेडियस ट्रिपल n के 3 हो। तो क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन कौन देती रेडियस डबल होती ना ट्रिपल होती ना हाफ होती ना 4 टाइम्स होती। तो रेडियस जिते टाइम्स हम एरिया कौन हम तार स्क्वायर टाइम्स हो आदि एरिया है स्क्वायर टाइम्स तो लेंथ कौन हम लेंथ हम 1 बाय स्क्वायर टाइम्स 1 बाय स्क्वायर टाइम्स ठीक अच्छे। तार जदि एरिया कौन एरिया हो 4 टाइम्स लेंथ के लेंथ हम 1/4 टाइम्स ठीक है जमी आम स्ट्रेचिंग केस करते देन यू कैन यूज द फॉर्मूला रो L बाय A एंड यू गेट द रिलेशन बिटवीन द ओल्ड रेजिस्टेंस एंड द न्यू रेजिस्टेंस ठीक अच्छे। So this is all about the questions that you will get from the dependence of resistance on length and area ठीक अच्छे। ओके तो तापर आम डिस्कस करवा ऑन रेजिस्टिविटी देख आम जो लिखी आर के आर हूँ रो L बाय A अगेन गो बैक टू द फॉर्मूला आर के आर हूँ रो L बाय A ठीक अच्छे। तो ये जो फॉर्मूला रे आम लिखिपर रो के रो हो आर इंटू A बाय L हम। तो रो को आम कौन कहे रो को आम कहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी। तो ये देखा जे ये रेजिस्टिविटी मीनिंग कौन लुक एट दिस फॉर्मूला रो के आर A बाय L लिखाई। तो जदि आम एल को लिखा 1 मीटर सपोज आम पाखे गोटे वायर अच्छी वी हैव ए कंडक्टर एंड इट्स लेंथ के लेंथ हूँ 1 मीटर एंड सपोज द एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर ओके। ताहले से केस कौन हम ना रेजिस्टिविटी के आर इंटू ए को लिखी 1 मीटर स्क्वायर लेंथ लेंथ हम 1 मीटर हो। सो फॉरगेट अबाउट यूनिट ओनली लुक एट द वैल्यूज रो इक्वल टू आर होगा 1/1 कौन कटिक 1 हो तो रो इक्वल टू आर हो कौन न्यूमेरिकली तमाने द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी ना रेजिस्टिविटी is always defined for a material not for a wire it is defined for a material। तमाने जदि आम डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप वायर नबा of the same material all of them will have the same resistivity ठीक अच्छे। तो यदि पचारि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर देन दैट इज द राइट क्वेश्चन बट रेजिस्टेंस is defined for a given wire। If I ask you what is the resistance of copper you cannot give the answer because resistance of copper is meaningless। देखो जदि मु कॉपर रु मु गोटे वायर बनेबी एंड डिफरेंट साइज वायर बनेबी all of them will have different resistance but all of them will have the same resistivity ठीक अच्छे। तार रेजिस्टेंस डिपेंड कर क्या लेंथ और एरिया पर मो सेम मटेरियल रो अलग अलग साइज रो मु वायर बनेबी they will have different resistances but all the wires will have the same resistivity ठीक अच्छे। ओके तो देखो आम जो कहले रो इक्वल टू आर कहले ता माने कौन केते हम रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर whose length is 1 meter and area is 1 square meter। ता माने सपोज हमको पता जीवो जो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर तो आम कौन करवा आम कॉपर गोटे वायर बनेबा जार लेंथ थी के लेंथ थी 1 मीटर आ एरिया के एरिया थी 1 स्क्वायर मीटर तो सही पर्टिकुलर साइज रो वायर रो रेजिस्टेंस जहाँ आसीबो
दैट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. तो स्पेसिफिक आम वर्ड यूज करुचे रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक वर्ड आम कहीं यूज करुचे टू फाइंड रेजिस्टिविटी वी हैव टू स्पेसिफाई द लेंथ एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ को आम फिक्स कर दोचे 1 मीटर करदे एरिया इज फिक्स्ड एट 1 स्क्वायर मीटर. तो से साइज रो कंडक्टर वायर नबा तार रेजिस्टेंस जहाँ आसीबो जेतिक ओम आसीबो the resistivity will be that much ohm meter because मन रख the SI unit of resistivity is what is ohm into meter मन रखिबो ohm meter ठीक है. and remember that the resistivity is constant for a given material at a given temperature. जदि मैं टेम्परेचर को चेंज करवा देन कौन हम रेजिस्टिविटी चेंज हो कहीं देख आम ये जो लिखीचे फॉर्मूला लुक एट दिस फॉर्मूला दिस क्वांटिटी m by n e square tau दिस इज द रेजिस्टिविटी रो केते हबो रो होई जिवो m by n e square tau. तमने जदि मैं टेम्परेचर को चेंज करवा तो टाउ चेंज हबो इफ टाउ चेंजेस तले कोन हबो रो भी चेंज हबो. ओके सो एट ए गिवन टेम्परेचर rho is fixed. Is that clear? So this is all about your resistivity. Okay. So next आम कौन देखा ये the graphical form of Ohm's law. The graphical form of Ohm's law. Graphical form of Ohm's law. तो यही टॉपिक को क्वेश्चन आस पारे Ohm's law ग्राफ ऊपर क्वेश्चन आस पारिबो graphical form of Ohm's law. तो एथुर कौन आसबो क्वेश्चन देखो आम जो ग्राफ ड्र करवा द ग्राफ कैन बी ड्रन इन 2 वेज. भलसे क्वेश्चन देखिबो आइदर से कौन करथिबो एक्स एक्सिस रे करेंट देथिबो वाई एक्सिस रे वोल्टेज देथिबो किंबा रिवर्स करथिबो एक्स एक्सिस रे वोल्टेज कहिथिबो एंड वाई रे कौन वाई रे करेंट कहिथिबो. ठीक अछि. तो आम जेमती भी ग्राफ ड्र करवा मन रखता Ohm's law graph केमती हुए always a straight line. It is always a straight line passing through the origin. ठीक है. When voltage is 0, current 0 हो. ठीक है. So the graph will start from origin and it will be a straight line graph because voltage is proportional to current. Okay. तो ये जो ग्राफ आम पाइले ये ग्राफ रो इम्पोर्टेंस कौन देखो ये ग्राफ रो इम्पोर्टेंस बहुत अधिक अच्छी कौन ता इम्पोर्टेंस जदि आम ये ग्राफ रो स्लोप बाहर करदबा then you get what quantity which quantity जेमती मैं कहली you have to always focus on which quantity is taken along which axis. Now let us consider about the first type of graph. जदि voltage देथिबो y axis रे current थिबो x axis रे तो से केस रे कोन हबो the slope will give you resistance. The slope will give you resistance. ठीक अच्छे. रिमेम्बर दिस पॉइंट ये वोल्टेज देइची y एक्सिस रे करंट देइची x एक्सिस रे स्लोप दबो रेजिस्टेंस किंतु जदि वोल्टेज देइची x एक्सिस रे करंट देइची y एक्सिस रे तो से केस रे कोन हबो द स्लोप विल गिव यू कंडक्टेंस. व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बा लिखबा कोन 1/r. इन द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ the slope will give you resistance but in the second type of graph the slope will give you conductance by reciprocal of resistance. ठीक है. ओके दिस इज फर्स्ट पॉइंट. अच्छा आउ कौन देखिए ये आम केमती स्लोप बाहर करवा इमेजिन कर आम जो स्ट्रेट लाइन पाइचे से स्ट्रेट लाइन टा केते एंगल करूची विथ एक्स एक्सिस देखिबो द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस इज गिवन. तो ये केस रे स्लोप केते हबो स्लोप हे जिवो tan थीटा. सो मन रखता स्लोप केते स्लोप होची tan थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस. ठीक अछि. अगेन ए फिगर भी थीटा देथिबो तो स्लोप केते हबो स्लोप हे जिवो tan थीटा हे जिवो. तो जदि हमें फर्स्ट टाइप रो ग्राफ रो स्लोप बाहर करिबा बा tan थीटा बाहर करिबा दैट tan थीटा विल गिव रेजिस्टेंस बट सेकंड टाइप ऑफ द ग्राफ थिबो यू गेट
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बा 1/r पाइबा बा विल गेट कंडक्टेंस ठीक अछि दिस इज द इंपोर्टेंट पॉइंट तापर देखो आ गोटे कोन क्वेश्चन आस पारे सपोज इमेजिन करो एमती गोटे ग्राफ देछि सपोज एपटे नहीं वोल्टेज एपटे नहीं करंट ओके एम सब ग्राफ देछि एंड एटा होछि फॉर मेटल ए दिस इज फॉर मेटल बी तो से पचाला जे द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ फॉर टू मेटल्स but two wires A and B is drawn. You have to find which one but which wire has more resistance. Option कौन थी वो RA is more than RB ना RA less than RB ना RA equal to RB ना cannot be said ठीक अच्छी एमती किसी ऑप्शन थी वो तो आमे यही टाइप रा क्वेश्चन केमती करिबा अगेन always look at the axis एक्स रे में करेंट नहीं वाई रे वोल्टेज नहीं दरकार पड़े एग्जाम कौन चेंज करदेव एक्स रे वोल्टेज देदेव वाई रे करेंट देदेव तो से केस रे आमे केमती करबा तो सिंपल ट्रिक माने रख सिंपल ट्रिक कौन द स्ट्रेट लाइन which makes more angle with current axis has more resistance always remember this important point जदि voltage current रो ग्राफ देछि for two different metals बा for two different wires आमे केमती जानिबा जे को वायर रेजिस्टेंस अधिक बा मोर आमे कौन देखिबा आमे फास्ट देखिबा जे व्हिच इज द करंट एक्सिस सेटा एक्स पे वाई हे पारे तो देखिए कौन ना को स्ट्रेट लाइन टा करंट सहित अधिक एंगल करूची ठीक अछि देखो इ जो ए और बी जो दुईटा आमे ग्राफ पाइचे ए लाइन ए करंट सहित देखो ए एंगल करूची थीटा 1 एंगल करूची किंतु आमे देखिबा B is making a larger angle with the current axis तो definitely B has more resistance than A ठीक अछि जदि एबे मैं कोन करिबी चेंज कर देबी एपटे वोल्टेज एपटे मैं कोन करंट कर देली ठीक अछि तो एबे कोन हबो आमे देखिबा जे which line is making more angle with the current axis तो एबे कोन अछि y होछि करंट एक्सिस देखिबा B स्मॉल एंगल करूछि A मोर एंगल करूछि त माने A has more resistance than B so it depends upon the टाइप ऑफ ग्राफ आम देखा जे करंट एक्सिस सहित को स्ट्रेट लाइन टा अधिक एंगल करुछि दैट वन हैज मोर रेजिस्टेंस ठीक अछि सो रिमेंबर दिस पॉइंट ला तो एटा तमे एग्जाम रे ए टाइप रा क्वेश्चन पाई परिबो तो देन मन रख जेमति म कहइतली जे रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल हबो कंडक्टेंस ठीक अछि एंड रेजिस्टिविटी रो रेसिप्रोकल कोन रेसिप्रोकल हबो कंडक्टिविटी ता माने आमे लिखिबा एठी सपोज वी राइटिंग रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ओके सो ए लिखि दोची कंडक्टिविटी को लिखिबा सिग्मा इज द कंडक्टिविटी जेटा 1/ρ एंड कंडक्टेंस ताको लिखिबा g एटा केटा हो 1/r ठीक अछि सो कंडक्टेंस ला रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एटा आसीबो mho mho बा आपको लिखिबा ओम इनवर्स ओके एंड कंडक्टिविटी ला कोन 1/रेजिस्टिविटी बा रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी एटा केते आसीबो एटा आसीबो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ठीक अछि बिकॉज रेजिस्टिविटी हैज यूनिट ओम मीटर सो कंडक्टिविटी केते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ठीक अछि बाकी केबा साइमन मीटर इनवर्स ओके सो ऑल दीस थिंग्स आर गिवन इन योर रेफरेंस बुक देखि परिबो आमे केवल डिस्कस करछे अबाउट द कांसेप्ट एंड फॉर्मूलाज ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी नेक्स्ट पॉइंट ला कोन ना आमे नेक्स्ट डिस्कस करबे अबाउट हाउ डज द रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर जेम मैं कहली रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मटेरियल if you take a material and if we change the temperature then the resistivity will change. So the next topic is how does the resistivity depend upon the temperature.
तो देख ये आम जानचे कौन ना रो के रो हूँ m by n e स्क्वायर टाउ ठीक अच्छे। तो जदि आम टेम्परेचर चेंज करवा तो टाउ चेंज हम ता सहित आउ कौन चेंज हम तो आम डिटेल्स जीवानी आम केवल जाना जे फॉर डिफरेंट मटेरियल्स हाउ डज द रेजिस्टिविटी चेंज। देखो इमेजिन करो सपोज एट टेम्परेचर T0 at temperature T0 the resistivity is rho naught केते rho naught अच्छी and suppose at a high temperature T the resistivity केते the resistivity is rho T ठीक अच्छी। तो what is the relation between rho T and rho naught? There is a formula rho T is equal to rho naught whole into 1 plus alpha t minus t naught 1 plus alpha into t minus t naught so rho t केते हो rho naught whole into 1 plus alpha t minus t naught। तो ये जो मैं अल्फा लिखुचे अल्फा माने कौन अल्फा माने होची टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ठीक अच्छे। तो आम यही फॉर्मूला को यूज करके आम बाहर कर जदि गोटे लो टेम्परेचर वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी देन एट ए हाई टेम्परेचर व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी। सो ये जो अल्फार वैल्यू पर डिपेंड करिवो जे गोटे मटेरियल रेजिस्टिविटी केते रैपिडली ग्रो करिवो किबा डिक्रीज हेबो। तो आम पाखरे जो मटेरियल अच्छी द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ठीक अच्छे। कौन गोटे हूँ मेटल्स आ गोटे हूँ सेमीकंडक्टर आ गोटे हूँ एलॉय ठीक अच्छे। तो वी कैन पास करेंट थ्रू मेटल्स थ्रू एलॉयज ऑल्सो थ्रू सेमीकंडक्टर्स। तो मन रखता फॉर मेटल्स कौन हम अल्फा इज पॉजिटिव व्हाट इज अल्फा दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज पॉजिटिव एंड हाई ता माने कौन जदि आम गोटे मेटाल टेम्परेचर को बढ़ेबा ताले कौन हम तार रेजिस्टिविटी रैपिडली ग्रो करिवो। एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ जदि आम ग्राफ ड्रॉ करवा क्या भीतर ग्राफ ड्रॉ करवा रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करवा द ग्राफ विल बी लाइक दिस ता माने जदि टेम्परेचर बढ़िबो रो बढ़िबो ठीक अच्छे। देन व्हाट अबाउट एलॉयज फॉर एलॉय माने कौन मिक्सचर ऑफ मेटल्स सपोज मैं कहि कॉन्स्टेंटान मैंगानीन निक्रोम सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलॉयज। एलॉय पाई कौन हम अल्फा इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल अल्फा इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल माने बहुत नेग्लिजिबल थी। तो सही कैसे कौन हम जदि में टेम्परेचर बढ़ेबा रेजिस्टिविटी बढ़िबो बट बहुत कम अमाउंट रे बढ़िबो ता माने फॉर ए लार्ज चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी विल चेंज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ए लार्ज चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी विल चेंज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ता माने एमती बढ़िबो देखो बहुत स्लोली बढ़िबो। इफ यू कंपेयर दीज टू ग्राफ्स लुक एट द फर्स्ट ग्राफ with increase of temperature the resistivity very rapidly increases but in the second graph for alloys कौन होची resistivity will increase very negligibly or very slowly with temperature। and the third category is semiconductor। for semiconductor suppose मैं कोई भी germanium silicon these are semiconductors। for semiconductors alpha is negative तो बंद रखो यदि अल्फा व पॉजिटिव देन रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर बट इफ अल्फा इज नेगेटिव देन रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज विथ टेम्परेचर। दैट्स व्हाई इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन रो एंड टी मीन्स रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर ए सेमीकंडक्टर द ग्राफ विल बी लाइक दिस इट इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन ठीक है। तो आम 3टा ग्राफ मन रखा rho versus T graph for a metal, for an alloy and for a semiconductor ठीक अच्छे। so this is all about your variation of resistivity with temperature। तो next आम कौन डिस्कस करवा कार्बन कोड ऑफ रेजिस्टर्स कार्बन
sorry, color code of register, color code of carbon registers. तो देखो ये कलर कोड माने कौन, आम जो सब रजिस्टर यूज करुचे से रजिस्टर ऊपर किसी कलर थाए, ठीक है, एंड बाय लुकिंग एट द कलर वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिकॉज ईच कलर स्पेसिफाइज सम नंबर. सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए कार्बन रजिस्टर एमती गोटे थी, ठीक अच्छे, सिलिंड्रिकल थी, तार दुई पटे दुटा वायर थी, ठीक अच्छे, and if you look closely you will see different bands of colors. इटा हूँ गोटे बैंड, फास्ट बैंड थी ये गोटे, सेकेंड बैंड एंड थर्ड बैंड, ठीक अच्छे. तो सबू रजिस्टर रे तीनटा बैंड कंपलसरी थाए, फोर्थ बैंड टिके दूर को थी, ठीक अच्छे, बट इन सम केसेस द फोर्थ बैंड मे बी एब्सेंट. ओके, तो तीनटा बैंड कंपलसरी थी, सदा थी, द फोर्थ बैंड may be present, may be absent, ठीक अच्छे, and the different bands they have different colors. तो आम से कलर देखिए केम जानिबा जे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर. तो गोटे कलर कोड अच्छी, तो ताको मैं लिखुची एठी कलर and the number associated with that color. B R O Y G B V G W. B for first B पता brown, sorry, black. The first B is black, then brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, ग्रे, व्हाइट, ठीक है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 we have 10 colors and we have 10 digits. So black is 0, brown is 1, red is 2, orange is 3, yellow is 4, green is 5, blue is 6, violet 7, grey 8, white 9, ठीक है. So आमे ये जो कलर कोड लिखले, दिस कलर कोड इज फॉर द फर्स्ट 3 कलर्स, जो फर्स्ट 3टा कलर अच्छी तापाई एप्लिकेबल, ठीक अच्छे. व्हाट अबाउट द फोर्थ कलर, तो मन रख फोर्थ कलरटा, फोर्थ बैंड जो अच्छी इट कैन बी गोल्ड, गोल्डन कलर थी, किंबा इट कैन बी सिल्वर कलर, और इट मे बी एब्सेंट, बा आमे लिखिबा नो कलर, द फोर्थ बैंड मे बी एब्सेंट. तो फोर्थ बैंड मीनिंग कौन से पर पढ़ा. आगे देख फास्ट जो 3टा कलर अच्छी तार मीनिंग कौन, देख जो ब्लैक पाई आम 0 यूज करुचे, तो मन रख जो 3टा कलर थाए से 3टा कलर रु फास्ट कलरटा केबे भी ब्लैक हेनी, बिकज फास्ट नंबर कैन नॉट बी 0. तो फास्ट कलर कैन बी ब्राउन, रेड, ऑरेंज और ऑनवर्ड्स, ब्लैक हो पार ना. द सेकेंड कलर, द थर्ड कलर देयर कैन बी ब्लैक. तो देखा जे ये कलर को यूज करके आम केमती बाहर करें व्हाट इज द रेजिस्टेंस. सपोज इमेजिन कर द फर्स्ट कलर इज रेड, ओके, सेकेंड कलर इज ब्राउन, थर्ड कलर इज येलो. सपोज रेड अच्छी फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर कौन ब्राउन, द थर्ड कलर इज येलो. सो हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. तो आम कौन करवा, आम माइंड रे अच्छी व्हाट इज द कोड फॉर डिफरेंट कलर्स. फॉर रेड आम कौन लिखुचे 2, इटू लिखिदेवा. फॉर ब्राउन वी हैव 1, फॉर येलो वी हैव 4, ठीक अच्छे. सो आफ्टर राइटिंग द कोड्स फॉर द डिफरेंट कलर्स आम कौन लिखा ये देख जो फास्ट जो 2टा कलर अच्छी तार माने कोड को देखिए नंबर फॉर्म करवा केते 21 हो, ठीक अच्छे. तो टेकिंग द कोड्स ऑफ द फर्स्ट 2 कलर्स आम लिखा 2 1 21 है. तापर गोटे इंटू करवा, मल्टीप्लाई साइन देवा. थर्ड कलर कौन अच्छी येलो अच्छी, तार नंबर केते 4. तो दैट नंबर विल बी द पावर ऑफ 10, 10 टू द पावर 4 लिखिदेवा. एगेन मैं कहूँ जो 3टा कलर थी फास्ट 2टा कलर जो नंबर बा कोड थी ताको देखिए नंबर फॉर्म करवा, यू गेट ए 2 डिजिट नंबर. तापर थर्ड कलर जो थी तार जहाँ कोड थी दैट विल बी द पावर ऑफ 10.
तो केते 4 अच्छी तो 10 पर 4 लिखले एंड गिव ए इनटू साइन ठीक अच्छे तो एटा केते हो 21 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोर्थ कलर मीनिंग कौन देखो आम जाचे जे द रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड विथ टेम्परेचर सो आम जो कार्बन रेजिस्टर नहीं inside that resistor we have carbon powder and the carbon powder can change the resistance with respect to temperature ठीक है under different environment बा under different condition the resistance can vary ठीक है जमती आम कौन कहे प्रत्येक आम जो गोटे माने मेजर करुचे एनी क्वांटिटी मेजर करुचे देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एरर ठीक है तो ये जो फोर्थ कलर अच्छी दैट इज फॉर टॉलरेंस वैल्यू टॉलरेंस वैल्यू माने कौन ता माने आमे जी मेजर कर रेजिस्टेंस से किसी भैरी करें ठीक है किसी ऊपर के नीचे हो पारे ठीक है तो गोल्ड जदि थी ता माने कौन द टॉलरेंस वैल्यू कहते ±5% ता माने जदि मैं 100 मेजर करथिबा 105 हो पारे कि 95 हो पारे द सिल्वर कलर थी इट मीन्स ±20% and there is if there is no color sorry it is 10% but if there is no color ठीक रो ता होची कहते जदि सिल्वर थिबो एटा होची ±10% and if there is no color एटा होची कहते ±20% ता माने जदि गोल्ड थिबो it is better because the variation is very small ± कहते 5% आसीबो so in this way by using the color code you can find the resistance of the carbon resistor ठीक अछि सो फ्रेंड्स आज वीडियो पे इतनी था आम बहुत गुड़े कनसेप्ट डिस्कस कले ता सहित नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कस करिया आहरी बहुत गुड़े पॉइंट अच्छे लाइक द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स देन सेल ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस देन किरचॉफ्स लॉज इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल दीज थिंग्स so all those concepts will be discussed in the next lecture so I hope that you have understood all the concepts that I discussed in this video and आउ गोटे वीडियो रे मु थ्योरी पार्ट फिनिश कर देबी and then we will go for solving numericals so if you are benefited from this video then please share this video with your friends who are also preparing for the mains examination and please hit the like button and if you are new to my channel then please subscribe to it so ठीक है पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे so till then have a nice day and bye bye